Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths NCERT and we are doing our last chapter on chapter 14 on probability, in which we have already started with exercise number 14.1. And in the last video we discussed from question number 11 to question number 19. बट समहाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था उस क्वेश्चन में। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 18 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज 18 to 25. So we will do from question number 18, 19 and then we will do question number 21 to 25. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट उसमें मिस हो गया था करवाने में, तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से ही स्टार्ट कर लेंगे और एक 19 दोबारा से कर लेंगे और उसके बाद 20 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है हमें, तो वी नीड नॉट डू दैट एंड वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 25. सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है जिसमें कि 90 डिस्क हैं और इनका जो नंबर दिए गए 1 से लेके 90 तक उन पे नंबर डाले गए। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. Probability of that it bears a 2-digit number. अब 2-digit नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो आपके कितने 1 से लेकर 9 तक आपके 9 नंबर्स होते हैं, टोटल कितने 90। उसके बाद आपके 2-digit नंबर शुरू होते हैं, तो आप 90 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। तो आपके ये कितने नंबर्स हुए 81 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना है 90, so this is your 9/10. Second part is probability of a perfect square. Probability of a perfect square. अब 1 से लेके 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से 1, 4, 9, 16, 25 सब हैं, 36, 49, 64 एंड 81। तो ये टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वन का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का। ओके, so you can count the number of perfect square. This is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 perfect squares हैं। So probability of getting a perfect square is your 9/90। भाई 90 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं इस केस में, so this becomes your 1/10. So this is your 1/10. And the third part for this question is probability of a number divisible by 5. Probability of a number which is divisible by 5. अब 5 से डिविजिबल जो है, 5 से डिविजिबल आपके कौन कौन से हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. So all these numbers, these are divisible by 5. Then now you can count how many of these are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So these are excuse me, 18 numbers which are divisible by 5. So probability of a number divisible by 5 is your 18 divided by total number of outcomes. So this is your 90. So this becomes your 1/5. So the probability for this is your 1/5. Now we move towards question number 19. So now we are doing our question number 19.
A child has a die whose six faces show the letters as given below. उसके पास एक डाई है, उसके ऊपर ऐसे लेटर्स बने हुए एक बच्चे के पास A B C D E and A. Okay. Now the find the probability, जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है find the what is the probability of getting A. अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हैं 6 हैं और A कितनी बार आ सकता है 2, तो 2 divided by 6 which is your 1/3. सेकेंड है probability of getting D. में D कितनी बार है ही एक बार divided by total number is 6, so this is your 1/6. So this solves your question number 19. Okay, now we are doing our question number 21. Lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. 144 ball pens हैं, उसमें से 20 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो गुड वंस कितने हो गए? तो यार गुड पेन्स is 144 minus 20 which is your 124. तो गुड पेन्स हो गए आपके पास 124. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम. अब यहाँ पर एक जो है वो पेन लेने आए और उसको शॉपकीपर ने शॉपकीपर को पेन दिया. दे विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. वो कह रहे हैं कि वो पेन को बाय तभी करेंगे जब वो अच्छा वाला होगा, अगर डिफेक्टिव है तो शी विल नॉट बाय इट. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय? प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, तो बाई वो कौन सा करेगी? बाई वो करेगी, इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन है, क्योंकि वो तभी बाई करेगी जब उसको अच्छा पेन दिया जाएगा. एक अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी इज योर 124 गुड पेन्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज योर 144. इसको आप कट कर देंगे. तो दिस इज योर 31/36 that she will buy it. And second part is that she will not buy it. Not buy, तो not buy को आप निकाल सकते हैं 1 में से probability that she will buy it. So this is your 5/36. So this is a probability that she will buy it. That means की probability of a good pen, क्योंकि वो तभी buy करेगी जब एक अच्छा पेन निकलेगा, तो उसकी 31/36 है और नहीं buy करेगी. इसका मतलब क्या है कि एक डिफेक्टिव पेन निकलेगा. दो तरीके हैं, 1 माइनस से आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग और या शी विल बाई इट से भी निकाल सकते हैं, और डिफेक्टिव से भी अगर आप डिफेक्टिव वाले से भी निकालेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा. चलो, so now we are moving towards question number 22. Question number 22. Refer to example 13. Complete the following table. Event has sum on 2 dice. एक एग्जाम्पल 13 आपकी बुक में दिया गया है. इवेंट इज कि दो डाइस हैं, उनके जो भी कॉम्बिनेशंस आए उनका आपको सम करने को कहा गया है और इनकी प्रोबेबिलिटी. तो इसकी जो है एक टेबल बनाई जाएगी. वो टेबल एक तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने को बोला है. तो ये प्रोबेबिलिटी की है और ये जो है ये इवेंट है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is your 12. तो जो आपको दी गई हैं वो दी गई हैं 1/36. तो 1/36 2 की जो है वो 1/36 दी है. 8 की दे रखी है 5/36 और जो 12 की है वो है
1/36। 12 की जो दी गई है वो है आपकी 1/36। आपको एक तो ये टेबल जो है पूरी ये आपको कंप्लीट ये आपको कंप्लीट करनी है। अच्छा, सम ऑन 2 डाइस। डाइस पे 1 से 6 ही नंबर होते हैं, तो ये एक तो दिया। अब 3 आने की, नंबर 3 के क्या कॉम्बिनेशन, मान लो ये आपने लिख दिया डाइस 1 और ये लिख दिया डाइस 2। 3 के क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि इस पे 1 है, इस पे 2 है, या इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो इसके कॉम्बिनेशंस क्या बने, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने, 2 बने। और टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये हो गया आपका 2/30। अच्छा, 2 डाइस के कैसे बनाते हैं भाई, आपने मान लो एक पे 1 है, पॉसिबल आउटकम्स बता रही हूँ, टोटल नंबर, तो 1 के साथ 1 का बन सकता है, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का। तो ये एक नंबर के साथ 6 है और 6 नंबर्स है, तो 6 इंटू 6 इज जो 36। तो इस तरह ये हो गया आपका 2/36। अब ऐसे नंबर 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो एक तो आपका 2 बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका 3 1, एक बन जाएगा आपका 1 3। तो ये आपके कितने बन जाएंगे, 3। तो ये आ गया आपका 3/36। ऐसे ही आप 5 का जब बनाएंगे तो 4/36, 5/36। तो इस तरह से। अब अगर मान लो मैं 7 का बताती हूँ, आप इसके बना के देखिएगा, आपको बन जाएंगे। 7 का अगर आप बनाएंगे तो एक में 1 आ सकता है, एक में 6 आ सकता है, एक में 6, एक में 1। और कैसे आ सकते हैं, 5 एंड 2 आ सकता है, 2 एंड 5 आ सकता है, 3 एंड 4 आ सकता है, 4 एंड 3 आ सकता है। तो ये बन गया आपका 1, कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सारे इसमें आ गए। तो ये हो गया आपका 6/36। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आप इसको यहाँ पे करते जाएंगे, तो ये जब आप अगर मान लो 9 का बना रहे हैं, तो 9 नंबर के लिए कॉम्बिनेशन आपके क्या बन जाएंगे, 9 नंबर कैसे बनेगा, 6 और 3, या 3 और 6, या 5 और 4, या 4 और 5। ऐसे आपका सम करोगे तो 9 आएगा, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/36। इसी तरह 10 का करेंगे तो 3/36, 11 का करेंगे तो भाई 11 में क्या है, या तो 6 और 5 आएगा या 5 और 6 आएगा। तो ये आपका 2/36। So this completes your this table. Okay, now the second part is a student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree? Justify. जस्टिफाई तो ये करना है कि भाई ये वो जो 11 की बात कर रहे हैं, जो 11 होंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो सेकंड पार्ट में नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि भाई वो जो कह रहा है वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सो द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट इन सेइंग दैट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Sorry, doing our question number 23. So question number 23 is a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. कि आपने उसको 3 times जो है वो टॉस किया, एक 1 रुपी का कॉइन है और उसको आपने So now we are doing our question number 23. Question number 23 says a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. एक 1 रुपी का कॉइन है, उसको 3 टाइम्स जो है वो टॉस किया गया और हर बार उसका आउटकम को नोट किया गया। हनीफ wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो 3 बार किया गया तो उसके क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, कि एक तो ये बना कि भाई तीनों बार हेड 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 आ जाए, या तीनों बार जो है वो टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने को आ सकते हैं, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए।
इसमें क्या करना क्या है, बनाना बहुत आसान है। एक को कांस्टेंट कर लिया और फिर दूसरे के आपने बनाते गए। मान लीजिए आपने यहाँ पे ये देखा कि अब मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 1 2 3 4, 3 बार और 4 बार आपने ये हेड लिखा और फिर इनके हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना लिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आ गए आपके 8। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि 3 बार उसको किया गया। तो पहले इसको आप 1 2 3 लिख दें, यहाँ पे हेड है, ठीक है, हेड को कांस्टेंट, अब ये 2 बार का हमें करना है तो पहले मैंने अभी लिख दिया 4 टाइम्स मैंने हेड लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन इसके बन गए। दूसरी बार में अब क्या करें, टेल टेल के कर दें इधर। अब टेल टेल के किए तो 2 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। तो दिस मेक्स योर 8 आउटकम्स। अब वो कह रहे हैं कि हनीफ जो है ही विल लूज द गेम। लूज कब करेगा, उसको तीनों में एक जैसा ही आना चाहिए। तीनों में अब एक जैसे का क्या मतलब है, तीनों में एक जैसे का मतलब ये है कि 3 हेड आ जाएं या फिर 3 टेल आ जाएं। तो अब बाकी द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, बाकी जो है वो लूज द गेम के ही हैं। बस वो जीतेगा कब, जब वो तीनों में सेम लेकर आएगा। तीनों में या तो हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए। अब ये कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका हनी विल लूज द गेम इज योर 6/8। तो दिस इज योर 3/4। चलो, अ डाई इज थ्रोन। अब 24th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 24th, a die is thrown once, what is the probability that 5 will not come up either time? 5 will not come, एक डाइस को थ्रो किया गया है और वो कह रहे हैं कि 5 जो है इट विल नॉट कम ईदर टाइम। 2 बार डाइस को थ्रो किया गया। अब 2 बार डाइस को जब थ्रो किया जाएगा तो आपके जब चाहे आप ये मान लीजिए कि डाइस को चाहे तो आपने 2 बार थ्रो किया या 2 डाइस को 1 बार थ्रो किया, दे आर द सेम थिंग। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो जैसे मैंने पहले भी अभी बताया था, तो आपके एक नंबर के साथ 6 बनते हैं तो 6 नंबर के साथ आपके 36 बन जाएंगे। सो 5 will not come up either time, 5 will not come up, कि 5 जो है वो आएगा ही नहीं, कम अप ईदर टाइम। तो अगर हम ये निकाल लेंगे 5 विल कम अप और फिर 1 माइनस करके कर सकते हैं। तो आप पहले तो इसमें कॉम्बिनेशन लिख देंगे 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 एंड 5, 6। ठीक है, फिर 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5। अब 5, 5 सेम आ जाएगा तो ये 6, 5। तो अब आपके कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप इज योर 11 अपॉन, और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 36 है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप is your 1 minus 11 upon 36, और this becomes your 25 upon 36। तो ये आ गया आपका 25 upon 36। ओके, नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यही है सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप, कि कम से कम एक बार तो आए आए। दिस योर 11
एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो आए, 2 बार भी आ सकता है, जैसे 5,5 में आया है, तो इट इज योर 11/36. Now we are doing our question, last question for this exercise, which is which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा सही नहीं है. So if two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. वो कह रहे हैं कि अगर 2 coins को एक साथ टॉस किया जाए तो there are 3 possible outcomes. अब 2 को आपने टॉस किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड. तो 3 तो है ही नहीं, आपके तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो देयरफॉर वो कह रहे हैं कि हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रोबेबिलिटी हर किसी की जो है वो 1/4 है, क्योंकि आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स है, 3 पॉसिबल आउटकम आपके 4 बनते हैं. सो द फर्स्ट इज योर इनकरेक्ट. नाउ सेकंड इज if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore the probability of getting an odd number is 1/2. एक बार डाई को थ्रो किया गया तो पॉसिबल 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6. तो वो कह रहे हैं कि ऑड नंबर की या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, वो तो है ही भाई. 1 3 5 जो है वो आपके ऑड हो गए, 2 4 6 जो है आपके इवन हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर आपके कौन से हैं? ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है. तो दिस इज योर 3/6 विच इज योर 1/2. तो इन्होंने जो बोला है कि यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 14.1 एंड आल्सो चैप्टर नंबर 14 ऑन प्रोबेबिलिटी. इसी के साथ हमारी क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक भी फिनिश हो जाती है. तो सभी लोग जो लोग बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं या क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. होप यू ऑल ऑफ यू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट.